Hello everyone. We are live again with another episode of BGen live series, and today we have Dr. Nimesh Shukla with us, and he's an HOD and professor at CMP College, Mumbai, and he has been practicing and teaching for more than 42 years. And it's just not that about it. He's also a celebrity physician for many Bollywood celebrities, and he'll be joining us for the topic. It's very unique and different and very interesting topic: winter wellness with homeopathic tadka. So, what you'll get to know about there, we'll get back to that right now and invite him. Meanwhile, when I'm inviting to know something more about that, you can always ask in the comments, and we'll be so much happier to give those answers. I have sent him an invite, and he will join shortly. So, uh, Abhi, actually, I wanted to conduct this session in Hindi because we have a lot of Hindi speaking audience. So, that's why we are continuing in Hindi. विंटर वेलनेस बेसिकली अभी विंटर्स में इतनी सारी कंप्लेन्स होती हैं, कॉमन कंप्लेन्स, थोड़ी सी रेयर भी हो सकती हैं, कुछ कंप्लेन्स बढ़ जाती है इवन विंटर्स में जो क्रॉनिक केसेस हैं. तो लेट मी इनवाइट हिम अगेन, देयर इज सम इशू. सो आई वाज टॉकिंग अबाउट विंटर डिजीजेस. तो इसमें हमारा जो अप्रोच होता है वो बहुत एक होम्योपैथिकली बहुत इम्पोर्टेंट होता है. So, Dr. Nimesh is with us. Good evening, sir. How are you? Fine, 1 minute. Okay. Oh, welcome, sir. Oh, good evening. So, I was telling people about our topic. So, and I introduced you, and it was quite an introduction. Okay. So, how are you, sir, today? Absolutely fine. So, we'll I start become much with that. better. So I can become much better after. I'm quite excited to share my experience. तो सर एक्चुअली इस एक्सपीरियंस भी बहुत सिग्निफिकेंट है. 42 ईयर्स आर अ लॉट, एंड इसमें आपके पास कितना कुछ होगा हमें बताने के लिए, वी कैन नॉट इवन इमेजिन. कोशिश करता हूँ कि जितना ज्यादा बता सकूं उतना बता दूं. एक्चुअली सर, मैंने जो आई केम अक्रॉस योर प्रोफाइल, एंड वहां से मेरे पास इतने सारे डेली के टिप्स होते हैं सीखने के लिए कि, और एनकरेजमेंट होता है कि अच्छा आज मैंने ये सुना तो आई शुड गो बैक एंड रीड अबाउट इट टू. It's very nice initiative, and thank you so much for doing that for us. Thank you. You're also doing a great job by inviting different speakers and promoting homeopathy. So that's the goal. I guess it's a common goal we all have. Yes. So when we start with our topic, अभी इस टाइम पे कोल्ड फ्लू के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं विंटर्स में. इवन अब थोड़ा सा चेंजिंग वेदर स्टार्ट हो रहा है, उसके साथ भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सीजन अब स्टार्ट हो गया है. तो उसके साथ में ऐसी कौन सी हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो हमारी एक्यूट रेमेडीज हैं, जो हमारी गो टू एक्यूट रेमेडीज होनी चाहिए, या कुछ इस तरह की रेयर मेडिसिन आप रेकमेंड जो करेंगे? See what happened during winter, the weather become dry. तो जब क्लाइमेट ड्राई हो जाती है तो डस्ट पार्टिकल फ्री हो जाते हैं सब, प्लस पॉल्यूटेड पार्टिकल भी फ्री हो जाते हैं. एंड बिकॉज दे फ्री इन द एयर, all the respiratory problem starts. Regarding the fever, there are something like a winter virus, which is very, very common. They multiply in cold climate. तो fever भी आ जाता है.
So in my experience, say normally when टोटालिटी लेते हैं तो सबको लगता है कि आर्सेनिक देना चाहिए, आर्सेनिक आल. But in my experience, instead of arsenic, Rumex works much better in Coryza. Especially, there are so much similarity between Rumex and arsenic because both are having thin, watery, acrid discharge. Both are chilly patient. But the difference, Rumex patient is so sensitive to cold that he wants to keep his nose always warm because slightest draft of cold air aggravate the coryza. Along with coryza in Rumex, there is also tickling sensation in the throat, which is not there in arsenic. In arsenic में ज्यादातर लंग्स में जाता है, वहां पे स्पाज्म आता है, ब्रोंकाई होती है. रूमेक्स में टिकलिंग सेंसेशन होता है एंड खांसी आती है. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन रूमेक्स, अगर ये सब सिम्टम्स के साथ पेशेंट को डायरिया है तो इट इज एडेड सिम्टम्स फॉर रूमेक्स टू डिस्क्राइब. नाउ डिपेंड पेशेंट कौन सी स्टेज पे आपके पास आता है. कोराइजा है या तो 2-3 दिन के बाद आएगा और उसका फीवर शुरू हो गया है, या तो फीवरिश फीलिंग है, या तो रूमेक्स दिया, थोड़ा कोल्ड बेटर हुआ एंड उसको फीवर भी आ गया. तो बेस्ट मेडिसिन इन विंटर इज Ferrum Phos 1M. Potency is very important. Rumex 30, Ferrum Phos 1M repeatedly for the fever, viral fever. Of course, other indicated medicine like Jalsemium can also come, but मैंने ऐसा देखा है कि रूमेक्स तुम दे रहे हो और रूमेक्स के बाद फीवर आया, रूमेक्स जैसे सिम्टम्स उसको थे और अभी उसको फीवर आ गया तो फेरम फॉस देने. दूसरी एक दवा है सेपोनेरिया करके. Now, saponaria is used just before the cold starts or the coryza starts because it has a property to break the coryza. So if the patient comes immediately, give saponaria in the initial stage. Now these are for the thin, watery, acrid discharge. But कभी-कभी विंटर में साइनोसाइटिस भी हो जाता है, डिस्चार्ज क्वाइट थिक हो जाता है. लोग मिस्टेक करते काली बाइक्रोम देके. काली बाइक्रोम से भी रिजल्ट आएगा, बट इट मे बी अ पार्शियल रिलीफ. To get a best result in winter sinusitis with thick yellowish discharge like Kali Bichrome, Hydrastis is an excellent remedy for winter sinusitis. Sinuses are very painful. Simple. Winter sinusitis, Hydrastis. Summer sinusitis, Kali Bichrome. And monsoon या rainy season sinusitis, natrum sulfate. Clinically, it gives best result. Another drug comes very close to Hydrastis where there's a dry coryza or dry sinusitis because of change of temperature is Ticta. In Ticta, there is hardly any discharge. Pain at the root of nose like Kali Bichrome. Constant wet feeling in the nose
Therefore, constant desire to blow the nose, but nothing will come out. Many a time in winter, especially the north side or Himachal, एक बारिश आती है तो टेम्परेचर फर्स्ट से ड्रॉप होता है. तो चेंज ऑफ टेम्परेचर के लिए स्टिक्टा और डलका मारा दो बहुत इंपॉर्टेंट दवाई है. द डिफरेंस बिटवीन डलका मारा एंड स्टिक्टा, एक तो स्टिक्टा में डिस्चार्ज बहुत कम होता है, डलका मारा में डिस्चार्ज होता है येलोइश कलर का. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, डलका मारा पेशेंट always, like Rumex, always wants to keep his nose warm, either by keeping the handkerchief or by rubbing the hand like this. Normally winter में हम करते हैं ऐसा, ऐसा करके they produce the heat and then this is dalka mara, which is not their instinct. Now these are the important medicine for the upper respiratory tract infection. फिर कभी कभी गला खराब हो जाता है. A common prescriber will prescribe Hiparsurf. Yes, you're right. Hiparsurf is a great remedy. Where the patient is very, very sensitive to cold, splinter-like pain in the throat, pain related to the ear. Yes. But there is one more remedy which gives very good result in winter throat problem. Cistus calendensis. Excellent remedy. Like Hiparsurf. Cistus patient also very, very sensitive to cold. Sensitive to cold air. How do you differentiate from Hiparsurf? In Hiparsurf, there is a splinter-like pain in the throat. There is a first point in the tonsils. While in cistus, there is a small dry spot in the throat. There is no pain, there is a dry spot in the throat. And with all the glands, cervical lymphadenopathy, glands are enlarged. Another characteristic of cistus, like lachesis में hot flushes होते हैं, cistus में cold flushes होते हैं. Coldness, everywhere coldness. सर में लगता है कि ठंडी घुस गई. बहुत जन ये पेशेंट बोलते हैं कि सर लगता है मेरे बॉडी में ठंड घुस गई है, और हम हिपार्सल्फ देते हैं. बट नहीं, यू रिमेंबर सिस्टर्स ऑल्सो. एंड अगर पेशेंट को क्रेविंग को चीज होएगा तो सोने पे सुहागा. आंख बंद करके दे दो सिस्टर्स, 90% तो रिजल्ट आ ही जाएगा. 30 में यूज करना. अनदर थिंग हैपन, कभी कभी गला बैठ जाता है, होर्सनेस ऑफ वॉइस हो जाता है. ऑफकोर्स कॉफ भी कम है, हिपार्सल्फ है, ये तो सब आपको मालूम ही होगा. बट एक दवाई है जो बहुत यूजफुल है for the hoarseness of voice, especially during winter. Populus, PP, Populus mother tincture, Populus scan. बुक में लिखा है it is a instant voice producer. Populus mother tincture में यूज करने का. उसके बाजू में दवाई आती है कोका मदर टिंचर. कोका में भी लिखा है इंस्टेंट वॉइस प्रोड्यूसर. कोका इज ऑल्सो ग्रेट रेमेडी फॉर पीपल हु आर स्टेइंग इन माउंटेन. बट द डिफरेंस बिटवीन पॉपुलस एंड कोका, पॉपुलस में पहले सर्दी होगी, कोल्ड होगा, एंड कोल्ड फॉलोड बाय होर्सनेस ऑफ वॉइस. कोल्ड फॉलोड बाय होर्सनेस ऑफ वॉइस, टोटल आवाज बंद हो गया है, हार्डली कुछ निकल रहा है. गिव Populus can 10 to 15 drops in half cup of warm water 3 to 4 times a day.
within few doses, his voice improves. Another commonest complaint during winter because of the dry climate, the dust particle, polluted particle free हो जाते हैं. फॉग होता है, स्मॉग होता है. स्मॉग मीन्स विद पॉल्यूशन. जब फॉग के साथ पॉल्यूशन मिक्स होता है तो स्मॉग बोलते हैं. मेंथा पिप्रेटा, a wonderful remedy for cough from exposure to smoke, tobacco smoke, smoke from the coal or from the pollution. Dry, husky cough. You many time आप लोग स्पॉन्जिया देने की मिस्टेक करते हो. पर दो मेंथा पिप्रेटा. अभी दिल्ली में जो हो रहा है, दिल्ली का जो पोल्यूशन है, मेंथा पिप्रेटा इज द ड्रग फॉर देम. मेंथा पिप्रेटा 30 रिपीटेडली. अगर आप क्लार्क मैट्रामेडिका पढ़ोगे, according to Clark, what he mentioned in his book about regarding mentha pipreta, what arnica is for injury, aconite for tension or inflammation, mentha pipreta is the drug for winter cough. During winter, it gives the best result, especially polluted air होएगी, exposure to pollution होएगा, तो सबसे अच्छा रिजल्ट है. Another 3 mother tincture I use very successfully in winter for tonsillitis, pharyngitis, laryngitis. Echinacea mother tincture, Phytoleca mother tincture, and Eucalyptus mother tincture. Take 5 to 10 drops from each, put it in a 1 cup of warm water and gargle it 2 to 3 times. You can use this mother tincture along with your indicated remedy. Now, these are the important medicine for the winter respiratory problem. Yes, Kiran. So, sir, हमने अभी अपने टॉपिक को डिस्कस किया, दैट इज विंटर वेलनेस विद होम्योपैथी तड़का. तो व्हाट इज दिस तड़का पार्ट इन दैट? Oh, very good question. तो तड़का सबसे खाने में तड़का सबसे इम्पोर्टेंट होता है. अभी मोस्ट ऑफ द ऑडियंस आर डॉक्टर एंड इवन स्टूडेंट. से खाना तो बना लेंगे, कॉमन ड्रग तो मालूम ही होगी उनको. हिपासल मालूम होगी, बेलाडोना मालूम होगी, मॉक्सवेल मालूम होगा. तड़का मतलब जो मैंने सर्टेन रेयर रेमेडीज बोला, मे नॉट बी रेयर बट रेयर यूज है उसका. तो तड़का वो रेमेडी है जो खाने में, रेसिपी में एक फ्रेगनेंस लाती है एंड पूरा खाने का टेस्ट चेंज कर देती है. तो जब कॉमन रेमेडी काम नहीं करती है, फिर तड़के वाली रेमेडी यूज करो और देखो आपको कितना तारीफ मिलता है. तो सर, हमने अभी रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स के लिए जो डिजीजेस विंटर में स्पेशली हो रही है, उनके लिए हमने बात की थी. एक चीज भूल गया मैं बोलना. अभी फॉग इज वेरी कॉमन. तो फॉग की वजह से खांसी होगी, एक्सपोजर टू फॉग एंड पेशेंट गेट कॉफ. एक तड़के वाली कॉमन रेमेडी है, कोई सोच भी नहीं सकता है. सीपिया इज द ड्रग, कॉफ फ्रॉम एक्सपोजर टू फॉग. And if patient is better in fog, cough is better in foggy weather, ये भी common remedy लेकिन तड़का वाली है. Spongia is the drug. In spongia, patient feels better in foggy weather. Sepia, cough in foggy weather. And hypericum में अस्थमा होता है foggy weather. Okay, we'll go further. Polak. Kiran. So,
सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जो हमारी स्किन में भी विंटर्स में कुछ कंप्लेंट्स आती हैं, क्रैकी हो जाती है स्किन, ड्राई, या एक्जिमा अगर किसी को कंटिन्यूस चल रहा है तो वो भी एग्रेवेट ज्यादा हो जाता है विंटर्स में। तो हमारी दो कॉमन रेमेडीज में सबको पता है, पेट्रोलियम हो गया, कैलेंडुला हो गया, तो अदर देन दैट व्हाट कैन वी यूज? See, normally petroleum, graphite, nitric acid, they are very good remedy for the cracks and this. But तड़के वाली रेमेडी जो है, जो ब्रिलियंट रिजल्ट देती है, एक है मेलेंड्रिनम एंड दूसरी है हाइड्रोकोटाइड. Now what happened in hydrocotide? Skin become dry, especially of palms and soles, with itching in soles. इतनी ड्राइनेस हो जाएगी उसको वहां पे खुजली भी आएगी, पर इतने क्रैक्स नहीं हो गया, ओनली ड्राइनेस होगा, ड्राई हो जाएगी. Therefore, hydrocotide is a very good drug for palmar and plantar psoriasis, which are normally aggravated during winter. Melandrinum, a wonderful remedy when there are deep cracks in palms or in the soles, painful cracks, deep cracks, dry, ragged skin. Melandrinum जैसी कोई ड्रग नहीं. I always tell my student to remember melandrinum. You have to remember one old advertisement. I am not promoting anything. Don't misunderstand. This is for only remembering purpose. एक बहुत साल पहले एक एडवर्टाइज आती थी कैलाश जीवन की. मुंह से महारानी, पैरों से नौकरानी. Why नौकरानी? Because servant has to work in water, and because they are working in water, उनके पैर खराब हो जाते, क्रैक हो जाते हैं, वहां पे स्किन खराब हो जाती है. तो मेलेंड्रिनम में एग्जैक्टली ऐसा ही होता है, पूरे पैर में क्रैक आ जाते हैं, पूरा पैर एकदम ड्राई रैगेड हो जाता है, पर इतनी इचिंग नहीं होती, पेन होती ज्यादा. हाइड्रोकोटाइड में इचिंग ज्यादा होता है. तीसरी एक दवाई है, तड़के की दवाई. जब when you find these cracks are very, very, very deep, इतना डीप कि ऐसा लगता है कि चाकू से काट दिया है. कभी भी दो पार्ट सेपरेट हो जाएंगे. चाकू से काट दिया है, कभी भी वो दो पार्ट सेपरेट हो जाएंगे. एक्सरे 30 बेस्ट रेमेडी, 3 times a day. All hydrocotide, melandrinum and X-ray, every drug has to be used in 13 potency repeatedly. Of course, you have to use moisturizing cream. वो तो must है. But with that, this medicine give wonderful result. So how to remember? Hydrocotide में ड्राइनेस है, इतना क्रैक्स नहीं है, पर इचिंग जाता है. मेलेंड्रिनम में क्रैक्स काफी है, ड्राइनेस भी है, एंड एक्सरे में और पेनफुल है. एक्सरे में पेनफुल तो है, बट इतना डीप क्रैक है, इतना डीप क्रैक है, एज इफ इट इज गोइंग टू सेपरेट आउट 2 पार्ट्स. तो एक्सरे 30 है. ये नॉर्मल स्किन के लिए तड़के वाली दवाई है. बाकी कॉमन दवाई तो सबको मालूम होती है. और एक तड़के वाली दवाई जो मैं बहुत यूज करता हूँ, मैंने टाइम विंटर में हाथ में बहुत स्किन निकलती है, उसमें क्रैक नहीं, ओनली द पीलिंग होता है स्किन का, ऐसे इसीलिए स्किन बाहर आ जाती है तुरंत से. काली सल्फ 6x, biochemic Kali Sulf 6x, 3 tablets 3 times a day, and you can see all these symptoms will disappear. And अगर एक चीज समर में कुछ प्रॉब्लम हो, समर में क्रैक आ गया, फिर विंटर में तो क्रैक आ ही जाता है, बट देयर आर सम कॉन्स्टिट्यूशन जिसको समर में क्रैक आते हैं. We have one wonderful remedy, Sarsaparilla is an excellent remedy for crack during summer. Okay, this is for the skin. एक
ये एक्चुअली थोड़ा सा सर यूनिक हो गया कि समर्स में जनरली हम इमेजिन नहीं करते हैं क्रैक्स, तो करेक्ट। इट्स वेरी यूनिक। और एक दवाई है विंटर के लिए, अगर बहुत ज्यादा एक्जिमा एग्रेवेट हो गया, बहुत ऊजिंग हो रहा है, नॉन स्टॉप ऊजिंग हो रहा है, थिक येलोइश पस लाइक डिस्चार्ज है, स्पेशली ईयर के आजू बाजू से तो बहुत ज्यादा हो रहा है, थोड़ी स्मेल भी आ रही है, तो तड़के वाली रेमेडी है स्कूकम चक्स 3x पोटेंसी। मैं रिपीट करता हूं, नॉर्मली क्या सल्फर देते हैं, सोराइनम देते हैं, ग्रेफाइटिस देते हैं, ग्रेफाइटिस जैसा ही समझ लो। जब ग्रेफाइटिस ने काम नहीं किया है और बहुत एग्रेवेशन है और ग्रेफाइटिस बहुत डीप एक्टिंग है तो एग्रेवेशन कर देती है, तो देने का स्कूकम चक्स 3x 3 times a day and you can see the miraculous result in skin. वंडरफुल। Okay, any question? किरण आगे। नेक्स्ट सर हम कवर करना चाहते हैं कि एक फटीग की प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा विंटर्स में हो जाती है, वीकनेस, फटीग और बहुत टायर्डनेस लोगों में होती है, तो उसके लिए क्या होम्योपैथिक मेडिसिन है हमारे पास जो उसको बूस्ट कर सके, वाइटैलिटी को जनरली बूस्ट करना हो अगर हमें। देखो, विंटर में अगर टायर्डनेस आती है तो एक दवाई हमारे पास है वेनेडियम, वेनेडियम वीवी, वेनेडियम मेटल है। वेनेडियम इज में लिखा हुआ है, दो चीज लिखी हुई बहुत इंपॉर्टेंट है वेनेडियम। एक लिखा है कि इट इंक्रीजेस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। नॉर्मली टायर्डनेस क्यों आती है विंटर में, स्पेशली हाई अल्टीट्यूड पे ज्यादा होता है, ये ऑक्सीजन कम हो जाता है, तो वेनेडियम बहुत अच्छा काम करती है। प्लस वेनेडियम में बोरिक में लिखा है इट helps to produce phagocytes. Now these phagocytes are the cells which fights against the infection, which improves your immunity. So it's an immunobooster. Vanadium is one of the immunobooster. And दूसरी दवाई है, अगर टायर्डनेस बहुत ज्यादा है तो यू कैन थिंक ऑफ ड्रग लाइक, अगर उसको फीवर आ गया और उसके बाद टायर्डनेस आ गई तो एविना सटाइवा मदर टिंचर 10 to 15 drops in half cup of water 2 to 3 times a day. These drugs give very good result for tiredness, fatigue, and excessive fatigue होएगा, फ्लू हुआ उसको एंड अभी बहुत फटीग आ गया तो सार्कोलैक्टिक एसिड देंगे, पोस्ट वायरल होगा तो सार्कोलैक्टिक एसिड 33 times a day. Of course, patient has to eat properly and drink lot of water. Normally winter में हम पानी कम पीते हैं, थर्स्ट नहीं लगती है ना, पानी डिहाइड्रेट भी हो जाता है, ठीक है क्या? ओके। नेक्स्ट इज सर जो हमारे यंग प्रैक्टिशनर्स जो देख रहे हैं उनके लिए क्या टिप्स हैं कि वो विंटर्स में अपने केसेस को बेटर मैनेज कर पाएं, केस टेकिंग टिप्स या फिर प्रिस्क्रिप्शन में वो और क्या नोटिस में ज्यादा रखें कि बेटर प्रिस्क्रिप्शन कर पाएं विद इवन लेस थॉट रेमेडीज along with common ones. देखो, मेरा तो मानना है, आई बिलीव के होम्योपैथी बेस्ड ऑन नेचर्स लॉ ऑफ क्योर, तो जब एनीथिंग बेस्ड ऑन नेचर वो बहुत सिंपल होता है, हम लोग उसको कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। इसलिए मैं इंस्टाग्राम में जो पेज चलाता हूँ उसमें लिखा हुआ है होम्योपैथी सिंप्लीफाइड, तो जितना सिंपल सोचोगे इतना अच्छा रिजल्ट आएगा। PQRS सिम्टम सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप कफ को ट्रीट कर रहे हो तो सेंसेशन ढूंढो, टिकलिंग है, इरिटेशन है, ड्राई स्पॉट है, एंड दवाई सिलेक्ट करो। मेरा तो कहना है यंगस्टर को तो एक्यूट केसेस ज्यादा ट्रीट करने चाहिए ताकि जिसमें रिजल्ट फटाक से आता है तो कॉन्फिडेंस भी और बढ़ जाता है। क्रॉनिक केस में क्या है, थोड़ा पेशेंट हैज टू कीप पेशेंट, डॉक्टर आल्सो हैज टू कीप पेशेंस,
तो एक्यूट ट्रीट करने के लिए मेनली एक्यूट टोटलिटी लो, जिसमें मोडालिटी को इम्पोर्टेंस दो, सेंसेशन को इम्पोर्टेंस दो, थर्स्ट को इम्पोर्टेंस दो, कुछ पर्टिकुलर क्रेविंग एवर्जन आ गई तो उसको दो। और मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ सेंसेशन को, PQRS। फॉर एग्जाम्पल, अगर पेशेंट बोला कि मुझे डस्टी सेंसेशन है थ्रोट में एंड मुझे खांसी आती है, एक ही दवाई इग्नेशिया 1M से चालू करने, क्योंकि बहुत PQRS है। तो ये सेंसेशन पकड़ो, और तुम्हारे पास कोई भी सॉफ्टवेयर आ गया, हमारे जैसा तो नहीं है, हमको बुक रेफर करना पड़ता है, आपके पास तो अभी सॉफ्टवेयर है, तो सेंसेशन डालो, दवाई तो मिल ही जाएगी आपको। बट शॉर्टकट मत लेना, जब तक अच्छा सेंसेशन नहीं मिले तब तक केस लेते रहना, देखना पेशेंट की हालत कैसी है। अगर बहुत बीमार होएगा तो 2-2 घंटा केस लेते रहोगे तो और बीमार हो जाएगा। ओके, एंड पोटेंसी ससेप्टिबिलिटी थोड़ा देखना, नहीं तो एक्यूट में जब फीवर वगैरह होता है तो नॉर्मली आई प्रिस्क्राइब इन डाइल्यूशंस, मतलब डेविएटेड डोज वाटर में डाल के मिक्स करके देता हूँ, ताकि उसका रिजल्ट बहुत फास्ट आता है और एग्रेवेशन नहीं होता है। ठीक है, सर इसमें एक क्वेश्चन हमारा था ऑडियंस में से कि पोटेंसी सिलेक्शन हम एक्यूट केसेस में कैसे करेंगे? क्या पॉइंट्स हमें उसमें सिंपल वे में हम किस तरह से डिसाइड करें कि पेशेंट को क्या पोटेंसी देनी है, रिपीटेशन कितना करना है? देखो अभी पोटेंसी सिलेक्शन पोसोलॉजी एक ऐसी चीज है ना, सबसे कंफ्यूजिंग होती है। मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूं, मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूं। मैं एक्यूट में मेरा ऐसा मानना है कि जो ड्रग which are from vegetable kingdom, which are very short acting remedy, ज्यादातर वही आती है तो हाई पोटेंसी में देने का, एंड इट रिक्वायर मोर रिपीटेड, फ्रिक्वेंटली रिपीटेशन लगता है, डिपेंड ऑन द डिजीज। अगर ससेप्टिबिलिटी बहुत खराब है, अंडर पैथोलॉजिकल कुछ है प्रॉब्लम, तो देखना। अदरवाइज सर्टन ड्रग्स वर्क्स मच मोर इन हाई पोटेंसी। 1M में दो, रिपीटेडली दो, पानी में दो, रिजल्ट अच्छा आता है। बाकी नोजोड वगैरह कुछ यूज कर रहे हैं तो उसका रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, उसको हाई पोटेंसी में दो, लेकिन 1 और 2 डोज दो। ट्यूबरक्लिन बहुत अच्छा काम करती है एक्यूट में। हालांकि बोरिस में लिखा हुआ है कि व्हेन यू यूजिंग ट्यूबरक्लिन इन चिल्ड्रन यू कैन रिपीट द डोज, रिपीटेशन, फ्रीक्वेंट रिपीटेशन कर सकते हैं। तो मैं नॉर्मली डोजेस में देता हूँ ट्यूबरक्लिन और एनी नोजोड। अदरवाइज जो भी दवाई वेजिटेबल किंगडम की है ज्यादातर हाई पोटेंसी में देता हूं। प्लस सर्टन रेमेडी लाइक फेरोमोन में जो बोला वो 1M में ही अच्छा काम करता है, ये मेरा एक्सपीरियंस हो सकता है दूसरे लोग को लो में काम करते, मैं नहीं देता हूँ। फिर लोग सेफ होने के लिए मीडियम पोटेंसी देते हैं कि चलो मैं इधर ना, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, एग्जाम में स्टूडेंट सेफ रहते हैं ना, ऐसा मत करना है। तो 30 दो या 1M दो, 1M बेटर काम करेगा, वो भी पानी में देना बेटर काम। और सर इन केस एक्यूट केस में एग्रेवेशन हो जाता है बहुत ज्यादा पेशेंट में, तो उसको कैसे कंट्रोल करना है? ये बहुत अच्छा सवाल है, सबसे अच्छा सवाल है। ये सब होम्योपैथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा ऐसा मानना है कि जब भी एग्रेवेशन होता है पेशेंट को, तो पहले आप डिजीज एग्रेवेशन समझ के उसको ट्रीट करो, उसको समझो। हम क्या करते हैं एज अ होम्योपैथ, अपना अपना बचाव करने के लिए उसको होम्योपैथी एग्रेवेशन कर देते हैं। जब तक तुम डिजीज एग्रेवेशन को रूल आउट नहीं करोगे, बाय रिक्वायर तो इन्वेस्टिगेट करो पेशेंट। डिजीज एग्रेवेशन नहीं है तो वो होम्योपैथी एग्रेवेशन होगा। अगर डिजीज एग्रेवेशन है तो तुम्हारी दवाई गलत हुई, तो यू टू टेक टोटलिटी अगेन एंड गिव द न्यू मेडिसिन। मेरा ऐसा मानना है कि लोग होम्योपैथी एग्रेवेशन करके एक
अपने आप को सेल्फ डिफेंस कर लेते हैं। तो जब तक डिजीज एग्रेवेशन प्रूव नहीं हुआ कि भाई नहीं है डिजीज एग्रेवेशन, तब तक उसको होम्योपैथी एग्रेवेशन मानने का नहीं। ये मेरा माई व्यू। हालांकि थियोरेटिकली है कि पेशेंट को देखा भी है कि व्हेन यू गिव होम्योपैथी एंड ऑल सिम्टम्स आर बेटर, लाइक जनरल्स आर बेटर, एंड फिर भी उसको एग्रेवेशन है, फीवर बढ़ गया है, तो होम्योपैथी एग्रेवेशन है। थोड़ा डिफिकल्ट है सब प्रैक्टिस में। वंस यू आर जूनियर हो गए तो बहुत मिलता नहीं जल्दी। तो आप ऑल द जूनियर डॉक्टर आई ऑल्सो एडवाइस टू माई ऑल माई स्टूडेंट ऑल्सो कि भाई पहले डिजीज को तुम सोचो, बाद में होम्योपैथी का एग्रेवेशन सोचो, नहीं तो क्या होगा, पेशेंट भाग जाएगा। और डिजीज एग्रेवेशन नहीं सोचोगे तो थोड़ा ही जाकर निमोनिया हो जाएगा, स्पेशली इन चिल्ड्रन। तो पहले डिजीज का सोचने का, रूल आउट करने का। थैंक यू सर फॉर गिविंग योर अ लॉट ऑफ टाइम फॉर अस एंड इतनी सारी टिप्स हमें मिली आज डिजीजेस को लेकर, पेटेंसीज, रिपीटेशन, एवरीथिंग। सर एक क्वेश्चन है, देयर इज इन एक्यूट केसेस रेमेडी सिलेक्शन कैसे करें विद वेरी फ्यू सिम्टम्स? कैन थेरेपेटिक नहीं, थेरापेटिक क्यों यूज करो? क्लार्क की एक क्लिनिकल रेपर्टरी है, वो भी बहुत अच्छी है। फाटक रेपर्टरी इज वेरी गुड क्लिनिकल। पर मट्रा मेडिकल स्ट्रॉन्ग रखो, मट्रा मेडिकल स्ट्रॉन्ग रखो। भले आप एलन स्किन से प्रिस्क्राइब करो वो, पर मट्रा मेडिकल स्ट्रॉन्ग होएगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता। मैं ज्यादातर बोरिक, एलेंस और फाटक से करता तो आई गेस और कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का, तो थैंक यू सर फॉर एक्सेप्टिंग द इनवाइट टू बी अ गेस्ट स्पीकर विद अस and I hope everyone liked the session and those who want to continue joining these sessions, they can follow Bijan Pharma for the updates and thank you so much everyone and good evening. मेरे को एक चीज बोलना है। Yes, so please. क्या होता है ना, मैंने तो अभी 42 ईयर्स से पढ़ाता हूँ कॉलेज में। मैंने देखा है बहुत टाइम होम्योपैथी दिल में रहती है, होम्योपैथी दिल में रहती है, समझ में नहीं आती। बट आई एम वेरी 100% श्योर कि जब मेरा आप लेक्चर सुनोगे तो होम्योपैथी दिल में भी रहेगी, समझ में भी आएगी और रिजल्ट भी देगी। आप बिल्कुल सर। दुआ में याद रखना। Thank you everyone. And if you have any questions, those were not answered, you can ask those in comments. We'll upload this session and your query will be answered there. Thank Sure, you. sure. Thank you. Thank you.